Hi guys, welcome to C2C Mentors. My name is Ketan. Hope you all are doing great. And congratulations to those who converted IIT Bombay. Guys, this review has been pending from a couple of days. I wasn't available, so I could not make the video at that point in time. But अभी बच्चों ने कहा कि sir, we would really want to know is IIT Bombay worth joining? And बहुत सारे बच्चों ने कहा कि sir, we want to know IIT Bombay versus I am Indore versus I am Kozhikode versus I am Shillong versus MDI Gurgaon versus NITI, so on and so forth. So I can understand your sort of excitement and anxiety at the same point in time that you really want to know more about IIT Bombay. So in this video, right, I will be reviewing IIT Bombay with respect to placements कितने अच्छे हैं, क्या roles आते हैं, क्या job profiles है, कौन से टाइप के बच्चों ने इसको ज्वाइन करना चाहिए, मे बी ए फ्रेशर और अ वर्क एक्स. We also going to be talking about male candidates and female candidates, and who should be opting for it, over and above IIMs and NITI and MD and Shillong and all the stuff. Also, if you're somebody who's preparing for CAT 2022, this video can actually help you to sort of get a little bit more motivated about it, right? Now, let's start with IIT Bombay. First of all, let me give you an idea about IIT Bombay. IIT Bombay is the only IIT, I'll reiterate. IIT Bombay is the only IIT amongst all the IITs and NITs out there, who's done a great job as far as the management field is concerned. Okay, IIT Bombay started this program a decade back, as far as their MBA is concerned. And they've been doing really good. Now there might be some people, they'll say that, oh, you know what, IIT Delhi is doing fantastic, IIT Kharagpur is doing really good. But guys, trust me, I'm telling you this, things from the horse's mouth. So again, IIT Bombay is doing fantastically good, because see, the problem here is that when you talk about IIT ना, वो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जब आ जाता है ना, तो थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं. बिकॉज हमारे लिए जब हम बात करते हैं कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में, टेक्निकल एजुकेशन के बारे में, तो हमारे पास IITs है. अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, तो हमारे पास IIMs है, राइट. तो एक एक्सक्लूसिविटी आ जाती है कि अगर टेक्निकल करना है तो भाई मेरे IIT चले जा, मैनेजमेंट करना है तो भाई मेरे तू IIM चले जा, सो एंड सो फोर्थ. ऑल्सो एट द सेम टाइम, अगर किसी को टेक्निकल करना है, मास्टर्स करना है, तो यार IIT बॉम्बे में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स है जहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी मास्टर्स कर सकते हो, मैथ्स में भी कर सकते हो, गेट देके आप MTech वगैरह भी कर सकते हो. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग इनसाइड IIT बॉम्बे. बट अगेन, let me start this video by saying that if you are under impression ki, the IIT Bombay is just good for technical thing, and you should not be opting it for IIM, you should not be opting it for MBA or over and above IIMs, then you might be wrong out there. So I'm gonna cut the crap. I'm gonna not review the management and other things and history and all that bullshit. I'll directly get on to the the final placement and the summer placement of IIT Bombay, because again everything is so good at it. So management has been working really good. So we'll not get in there. Now if you look at the final placement of IIT Bombay, right, I want you to have a close look at these numbers and listen to me very carefully for a couple of more minutes now. Number one thing, which is the batch size. Now, if you talk about batch size, right, 110 students on board, right, which is, if I really look at from the perspective of the IIMs, it's around about 25%, or let's say max 30%, nothing more than that, honestly, right? Out of which 87% people are work-ex, and 23% sort of kids, not 23%. If you talk about round about 13% students are actually freshers. Now, by now you might have understood that okay, freshers are pretty much less. Does that mean as a fresher you should not be opting for IIT Bombay? No, it's not that the case, right? Now, this is what I'm telling you. So there are a lot of surprises you'll be getting when you look at IIT Bombay closely. 87% work ex is a fabulous thing. इनका एवरेज वर्क एक्स 23 मंथ्स का है भाई मेरे, मतलब 2 साल इनका एवरेज वर्क एक्स है. तो यहाँ पे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3, 4 साल वाले भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको डेफिनेटली दिखने वाले हैं. इनकी जो एवरेज एज है वो है 24. अब यहाँ पे आप 20 भी हो, 21 भी हो, 28, 27 वाले बच्चे भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं. तो अगर आप देखोगे ना, अगर मुझे एक चीज़ यहाँ पे अगर कमेंट करनी होगी, डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू बी बाइस्ड अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ अ वर्क एक्स एंड अ नॉन वर्क एक्स क्राउड, बट आई टेल यू दिस इज वन ऑफ द मोस्ट or one of the best combination as far as the work ex guys are concerned, because when you kind of put these things in a perspective कि यार जब आपकी बैच में 2 साल का एवरेज वर्क एक्स वाले बच्चे बैठे हैं, इमेजिन क्या लेवल की मेचोरिटी ये बच्चे लाते हैं टेबल पे.
यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? सो इकोनॉमिक्स में एक रूल है, अदर थिंग्स बिंग इक्वल, नाउ every work is guy does not necessarily has to be sort of talented or mature enough, but then yes, this is something I really like about IIT Bombay कि यार इतने जो बच्चे होते हैं जो वर्किंग्स लेके आते हैं, इमेजिन करो यार क्या मैच्योरिटी आती है, क्या एक्सपीरियंस आता है आपके क्लास में, एक जो डाइवर्सिटी होती है ना अलग लेवल पे होती है, बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस फ्रेशर्स ना के बराबर नहीं है, 13% फ्रेशर्स है, कंसेप्चुअली वो भी अच्छे होते हैं, दे कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम द वर्क एक्स फोक्स, राइट? सो देयर इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ sort of freshers का यहाँ पे आपको एक प्रेजेंस दिखता है, बट दिस इज व्हाट आई रियली लव अबाउट IIT Bombay, that having that mature crowd and having that experienced crowd is actually helping IIT Bombay to kind of excel. मूविंग एड, हम डोमेन का स्प्लिट थोड़ा देखते हैं। अगर मैं बात करूँ कंसल्ट के बारे में, कंसल्ट एक्चुअली लीज द चार्ट if you talk about consult, which is like ITES, because यार ITES में ना आपके मोस्टली ना कंसल्ट के ही जॉब होते हैं, तो ITES is on the top। अब देखो ITES क्या है, ITES is more of a BPO or sort of a subsidiary companies of the actual IT major companies, or probably you can talk about EXL and all that. EXL is a fabulous company that goes to Ahmedabad also, they वहाँ पे they pay around about 20 lakhs something like that, 15 CTC है, 5 लाख उनका बोनस वगैरह, right? So if you talk about that, right, so there is a pretty good combination with respect to consult, with respect to ITES, and with respect to marketing, because again I'll tell you, finance and all, probably you will not be that happy once you join IIT Bombay for finance and all that, but ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं, वो एक एडवांटेज भी है, because finance के बच्चे ज़्यादा ना होना IIT Bombay में has turned out to be an advantage to a lot of folks out there. We'll talk about that in a while, by the way. So let's talk about the work split out here. 3+ years are around about 12%. 2 to 3 years is around about 38%. That's the maximum crowd that I'm talking about. 28% is 1 to 2 years, and 0 to 1 year is around about 22%. To be very honest, anybody who is close to 1 year, I will still count them as a fresher. Okay? आगे चलेंगे, अगर हम बात करते हैं engineering के बारे में, so you guys can go here and you can check what sort of domain they have. Now this is the overall idea. So a couple of good points, you have a lot of mature people in the classroom, there's a lot of work happening in the classroom, it helps faculties to kind of get the things on board or get the things on the table as quickly as he or she can, because ज़्यादा explanation की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बच्चे अपने आप समझ में जाते हैं, right? Because that's all the practical thing. Now let's move ahead and have a little bit idea about the summer placements also. अगर मैं समर प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ तो देखो एक चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आती है, बैच साइज 113, वर्किंग कैंडिडेट्स आर 72%, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा रुक जाना, मैं वीडियो में आपको बता दूंगा इवेंचुअली क्या सीन है। देखो अभी फिलहाल क्या हो रहा है ना, ये हमारी 22 वाली जो बैच है ना जो पास आउट हुई है उसका सीन है, और जो 22 के बच्चे अभी आप जाओगे आपके लिए थोड़ा अलग होगा, जो 21 में बच्चे आए हैं, राइट, जो 23rd में प्लेसमेंट लेंगे फाइनल। अगर आप देखो यहाँ पे नंबर्स चेंज हुए हैं, आप देखो पहले 21 का जो बैच आया था वहाँ पे 87% लोग विथ वर्किंग्स थे, अभी ये 72% है, मतलब नंबर घटा है, एंड फॉर द फैक्ट नंबर हैज़ गॉन डाउन। इफ यू लुक एट द एवरेज वर्किंग्स has actually gone down from around about 23 months से लेके 19 months, because now freshers are coming on board a little bit more, right? तो ये एक अच्छी बात है जहाँ तक हम देख रहे हैं, right? थोड़ा सा अगर मैं स्प्लिट देखो 3+ years is 8%, 3+ years is 12%, 2 to 3 years is around about 34%, 1 to 2 years is 21%, it was here which is like 28%, 38%, ये drastically down, but not that highly, but then decent amount में ये कम हो रहा है। यहाँ पे 0 to 1 year वाले 22% थे, यहाँ पे 0 to 1 वाले 37% है, मतलब कहीं ना कहीं freshers are now opting IIT Bombay because now they know that the college is doing phenomenally good. ठीक है, slowly steadily I will unfold IIT Bombay for you folks, so hang in there till the end of the video. Again, ITES leads the chart, then you have consulting, you've got operations, and you've got sales and marketing. अगर मैं placement statistics के बारे में बात करूँ, इनकी जो highest stipend है वो 3.66 lakhs है, which is definitely good. अगर मैं बात करूँ कोई कोड लखनऊ इंदौर के लेवल पे है, इनकी जो median stipend है, which I'm really interested to know, that's around about 2.45 lakhs, which is again giving a real good competition to the old IIMs. Again, जब आप मेरी वीडियोस देखोगे तब याद रखना 3 बाइफर्केशन में करता हूँ, 4 बाइफर्केशन होते हैं, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, Calcutta. I always kind of
consider them as a holy trinity. I talk about them as holy trinity. Then you have Lucknow, Kozhikode, Indore. I sort of put them into the old IIM bracket. Then you've got new IIMs, then you've got baby IIMs, right? So जहाँ तक बात है old IIMs के बारे में, so do not confuse yourself कि चलो सर ने ABC को भी यहाँ पे include कर दिया. No, I am definitely not going to do that. So old IIM की टक्कर का इनका अगर मैं देखूँ तो प्लेसमेंट है. अब आप कहोगे कि सर ये तो IIT बॉम्बे का ब्रांड है तो होना ही चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है. बट गाइज अंडरस्टैंड दिस, IIT बॉम्बे का जो मेन ब्रेड एंड बटर है, दैट इज नॉट द मैनेजमेंट एजुकेशन, राइट? इट इज बेसिकली द टेक्निकल एजुकेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? एंड एज फार एज द engineering person, they are doing phenomenally good. They're like what, FBs of the world and the Googles of the and the Amazons of the world coming on the campus and giving 1 CR plus packages. Anyway, एवरेज स्टाइपेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे, 16.5% से वो इंक्रीज हुआ है, ये बात है. दिस इज नॉट इन टू अंडरस्टैंड दैट कॉलेज अगर आप देखोगे ओवरऑल ईयर बाय ईयर ये ग्रो कर ही रहा है, ठीक है? 16.5% की इनकी ग्रोथ है, विच इज़ वेरी गुड. अगर मैं सेक्टर वाइज आपको थोड़ा सा बता दूँ, स्टाइपेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे, टॉप 25% इज अराउंड अबाउट 3.35 lakhs, फॉर टॉप 50% इज अराउंड अबाउट 3 lakhs, 80% इज अराउंड अबाउट 2.65 lakhs, विच इज रियली गुड. स्टूडेंट स्प्लिट के बारे में अगर हम बात करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर गेटिंग इनटू IT कंसल्टिंग, FMCG मैन्युफैक्चरिंग, देन वी गॉट हेल्थ केयर, ई-कॉम, अदर्स. इसके बारे में थोड़ा बात करूंगा. BFSI इज लिटिल लो और सॉर्ट ऑफ एट द बॉटम अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है? वर्क इसके बारे में हमने बात ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर मैं बात करूँ तुम्हारा सेक्टर हाईलाइट, तो सेक्टर हाईलाइट को थोड़ा साइड में रखते हैं. अब चलते हैं प्लेसमेंट रिपोर्ट पे. फाइनल वाला जो प्लेसमेंट था उसके बारे में बात करते हैं. इफ़ यू लुक एट द की स्टैटिस्टिक्स, दे आर सुपर डुपर गुड एंड दे आर फिनॉमिनली गुड बाय द वे. सबसे पहली चीज़ अगर मैं देखूँ, अब थोड़ा कंपैरिजन करना चालू कर दो. देखो कितने बच्चे हैं, 110 बच्चे हैं. 21-22 का बैच, 2022 का बैच जो है 110 बच्चे हैं, बराबर. 110 बच्चों में से 65 बच्चों को यहाँ पे PPO मिला है. दैट्स राउंड अबाउट, अगर आप देखोगे, मोर देन 50% ऑफ द बैच इज गेटिंग दी PPOs. गाइज इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके जो समर्स है, दे आर सो ब्लडी फ्रिकिंगली स्ट्रॉन्ग दैट यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट योर समर इनटू अ फाइनल प्लेसमेंट, विच इज एक्चुअली गुड. सो व्हाट यू कैन डिराइव फ्रॉम दिस, you can derive from this is that अगर मैं समर प्लेसमेंट की इनकी प्रोफाइल्स देखूँ, they got to be really cult. Again, I'm not saying that 100% is going to be cult. Definitely not. But even if it's 70-75%, which is the case by the way, it's a really good thing. Okay, because यार समर को PPO में कन्वर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है. तो मुझे लगता है कहीं ना IIT बॉम्बे का एक बहुत तगड़ा होल्ड है उसके समर पे, एंड दैट्स द रीजन मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर नाउ गेटिंग इनटू फाइनल. तो अगर आप देखोगे, इंक्रीज इन PPOs इज अराउंड अबाउट 44.4%. दैट्स अ वेरी गुड नंबर. लोवेस्ट CTC इन फाइनल, दैट्स 17 bloody lakhs. It's a very good number. 17 lakhs is the lowest for finals, and lowest for PPO is around about 14 lakhs, which is very good, which is absolutely fantastic. आगे चलेंगे. हाईएस्ट सैलरी तुम्हारा 49 lakhs है, एवरेज तुम्हारा 25.9 है, विच इज अराउंड अबाउट 26 lakhs. तुम्हारा मीडियन जो है वो 25.8 lakhs है. अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा रुकूँ और अगर मैं थोड़ा यहाँ पे आपको एक काइंड ऑफ एनालिसिस दूँ, तुम्हारा कोईकोड हो, तुम्हारा इंदौर हो, उसकी जो एवरेज प्लेसमेंट है वो अराउंड अबाउट 28-29 लाख की तकरीबन है, ठीक है? अब बहुत सारा बच्चा बोलेगा कि सर इससे तो अगर देखा जाए तो यार कोईकोड एंड इंदौर बेटर लगते हैं. देखो बात तो सही है, कोईकोड एंड इंदौर बेटर लगते हैं, बिकॉज देखो ये जो एवरेज सिटी से ना 110 पे निकाली है, तुम्हारा कोईकोड इंदौर में 500-550 बच्चा बैठा है. सो डेफिनेटली वहाँ पे अच्छी चीज़ें हो रही है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दे आर IIM कोईकोड एंड दे आर IIM इंदौर, दे आर डूइंग रियली गुड. सो वहाँ पे मैं डेफिनेटली इनको थोड़ा सा एज दूंगा. किसको? इंदौर एंड कोईकोड एंड लखनऊ को, दैट दे आर डूइंग रियली गुड. बट अगर मैं देखूँ एक फ्यूचरिस्टिक परस्पेक्टिव, आप कमेंट करके बताना आपको सही लगता है कि गलत. मुझे लगता है अगले हाफ अ डिकेड में, अराउंड अबाउट 5 to 6 years में, आई थिंक IIT बॉम्बे विल बी डूइंग अमेजिंगली गुड, बिकॉज जिस तरीके से इनका परफॉर्मेंस है, आई थिंक IIT बॉम्बे विल बी डूइंग रियली गुड. इंक्रीमेंट इन एवरेज सिटीज इज अराउंड अबाउट 18.1%, विच इज अगेन अ गुड नंबर. फीमेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, सी दिस इज द वे यू प्रिपेयर placement papers, and I love the fact that it's a so bloody detailed manner. Highest CTC for female is 32.8 lakhs, which is very good. In Maharashtra they say mulgi shikli pragati zali, which is very good by the way. Okay, so girls out there, इफ़ यू रियली वांट टू गेट इनटू IIT, यू कैन गेट इनटू IIT. लोड मत लेना कि यार लड़के ही ज़्यादा होते हैं, लड़कियाँ कम होते हैं, फिर कैसे करेंगे, क्या करेंगे. यू कैन फक अबाउट दिस थिंग्स. तुम्हें 2 साल वहाँ पे रहना है, तुम्हें अच्छी पैकेज निकालनी है. मैं तो कहूँगा कि भाई मतलब अगर लड़कियों का नंबर यहाँ पे कम है, इफ़ यू फील दैट यू आर अ स्मार्ट पर्सन इन द रूम, गेट इनटू IIT बॉम्बे इज गोना गिव यू अ हेक लॉट ऑफ एडवांटेज. इफ आर एन इंजीनियर देन यू शुड बी कंसिडरिंग दैट, बिकॉज ये एक एडवांटेज आपको मिल जाता है डेफिनेटली, राइट? एवरेज CTC ठीक है 29.8, विच इज क्लोज टू 30.
मीडियन इज 28.4 lakhs. डेफिनेटली गर्ल्स आर डूइंग रियली गुड. अगर मैं बात करूँ एवरेज सिटीज स्प्लिट के बारे में, जो फाइनल का प्लेसमेंट है, टॉप 25% बच्चों को 35.4 लाख मिला है. भाई मेरे ये लास्ट ईयर 32-33 पे था, नंबर्स बड़े हैं इनके. टॉप 50% प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे 31.1 लाख. टॉप 75% इज 28.4 लाख, विच लुक्स रियली गुड. ओके, विच लुक्स रियली फैबुलस. अगर मैं बात करूँ BFSI सेक्टर के बारे में, कंसल्ट 28, ई कॉमर्स 23, BFSI 12%, FMCG मैन्युफैक्चरिंग इज अराउंड 26%. स्टूडेंट स्प्लिट के बारे में बात करेंगे. सो यू गॉट द चार्ट ऑन द स्क्रीन, यू कैन हैव अ लुक एट इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोफाइल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखो BFSI सेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूँ, BFSI सेक्टर हैज बीन डूइंग decently good, okay, as far as IIT Bombay is concerned. देखो अभी यहाँ पे प्रोफाइल क्या है. You've got ICICI Bank, you've got some JP Morgan Nomura guys coming on the campus. You've got some investment banking analyst, you've got liabilities product manager, you've got risk management strategy analyst, so on and so forth. Okay, guys, honestly, if you're really somebody who really want to get into finance, I would definitely not advise you to go for IIT Bombay. I would rather prefer you to kind of go for Indore, Lucknow and Shillong. Lucknow is anytime better. Probably you can go for IIM Kozhikode. ठीक है. अगर मैं शिलोंग के बारे में बात करूँ, yes, फाइनेंस इज द डोमेन जहाँ पे मैं शिलोंग को थोड़ा प्रेफर करूँगा. मैं MDI को भी ज़्यादा प्रेफर करूँगा अगर मैं फाइनेंस के बारे में बात करता हूँ. अब आप बोलोगे लेकिन सर यहाँ पे एक तो प्रॉब्लम है ना, हमें ब्रांड भी तो देखना जरूरी है, बिकॉज ब्रांड तो आगे जाके बड़ा होगा. भाई मेरे एक चीज़ याद रख, IIT बॉम्बे जो भी परफॉर्म कर रहा है ना, IIT बॉम्बे अगर मैं बात करूँ, डेफिनेटली IITians आर रूलिंग द फाइनेंशियल डोमेन, बट यहाँ पे तुझे प्रोफाइल मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर तेरी प्रोफाइल फाइनेंस की अगर अच्छी नहीं है ना, तो आगे जाके फिर तुझे पंगे होंगे. इसलिए यू गॉट बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट फाइनेंस का प्रोफाइल. सी मार्केटिंग में ना, यू कैन पिक एनीथिंग दैट कम्स टू योर वे. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज डोंट माइंड, मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग इज बेसिकली फॉर मासेस, फाइनेंस इज फॉर प्योरली क्लासेस. हाँ, फाइनेंस में बल्क हायरिंग वायरिंग नहीं होता है. फाइनेंस में प्रोफाइल बहुत मैटर करता है. और अगर फाइनेंस में ग्रो करना है ना तुमको, भाई यू हैव टू हैव अ गुड प्रोफाइल एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर. इवेंचुअली जाके यू कैन मिंट मनी लाइक एनीथिंग. ओके, आई एम टेलिंग यू बाय माई ओन एक्सपीरियंस, सो हैव सम फेथ इन दैट इन्फॉर्मेशन. आगे चलेंगे. कंसल्टिंग इज गोइंग टू बी अमेजिंगली गुड एज फार एज IIT बॉम्बे इज कंसर्न. अगर देखो, आपके पास डिलॉयट USA आती है, आपके पास जनरल इलेक्ट्रिक्स आती है, आपके पास AT कर्नी है, KPMG है, इन्फोसिस है, हिताची है. you've got all the bloody good companies coming on the campus, even the big fours are coming on the campus. तो अगर मैं बात करूँ, आपको IIT बॉम्बे में कंसल्टिंग डोमेन में थोड़ा सा एज मिलता है, डेफिनेटली मिलता है. बिकॉज अगर हम देखेंगे, आपकी जो मोस्टली जो कंसल्टिंग होती है वो IITS में होती है. आपकी जो मोस्टली कंसल्टिंग होती है वो स्टार्टअप्स में होती है. आपको भी आजकल पता है जो स्टार्टअप्स है, दे आर मोर इनटू द IT डोमेन, राइट? तो वहाँ पे पैकेजेस आर गोइंग क्रेजी. इवन इफ यू टॉक अबाउट प्रोडमैन एंड ऑल दैट स्टफ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑल दैट, वहाँ पे ये जो प्रोफाइल्स है, दे आर फ्लडिंग आउट there, right? So yes, for consulting, I would definitely put IIT Bombay equal to IIM Kozhikode sort of a thing, but definitely I will put IIT Bombay a bit over and above IIM Shillong, that's for sure, and even for that matter NITI, right? Something like that. ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना. बट जहाँ तक बात है MDI गुड़गांव के बारे में, MDI गुड़गांव इज़ रियली गुड फॉर फाइनेंस. बट अगर आपको दोनों में अगर आपको कॉम्बिनेशन चाहिए, दोनों आप सेम लेवल पे मैं रेट कर सकता हूँ. यू कैन टेक MDI, यू कैन टेक IIT, डजेंट रियली मैटर. वट मैटर्स हाउ डू यू परफॉर्म एट द एंड ऑफ दैट. ठीक है, आगे चलेंगे. E-कॉमर्स आग बंद करके ले लेना. E-कॉमर्स में अगर आपको जाना है, if you want to be a prod man guy, or if you want to be somebody into consulting and supply chain वगैरह करना है, आप बिंदास E-commerce पकड़ सकते हो. IIT is known for that. Even IIT is doing really good as far as the FMCG and manufacturing is concerned. You've got FMCG good companies coming on the campus. This is kind of a really surprising to me that Marico, Mondelez, Britannia, Asian Paints and Colgate Palmolive and all these Godrej and all that, they are coming on the campus. So this is something we can look forward for. So it is not that bad as far as FMCG is concerned. आगे चलेंगे. हेल्थ केयर के लिए भी एक्चुअली they started companies coming on the campus. So even if you look at for sales and marketing, SCM, हेल्थ केयर के लिए, मतलब हेल्थ केयर मार्केटिंग, हेल्थ केयर SCM के लिए भी दे आर लुकिंग रियली गुड. सो अगर मैं एक ओवरऑल आइडिया बता दूँ, एक ना थोड़ा समर का भी देख लेते हैं. अगर मैं बात करूँ तुम्हारे BFSI के बारे में, देखो BFSI में कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है सच, वो सिंपल सी बात है. अगर मैं आपको बोलूँ ट्रेजरी में जाना है, देखो यार ट्रेजरी तो तुझे यहाँ पे भी दिखेगा, राइट? तो ट्रेजरी तुझे यहाँ पे भी दिखेगा. ट्रेजरी इज़ वन ऑफ द फैबुलस रोल, बट यहाँ पे ना थोड़ा बहुत ज़्यादा मैथ्स वगैरह इन्वॉल्व होता है, तो बच्चे यहाँ पे चले जाते हैं. बट अगर आप देखोगे कंसल्टिंग हो गया, FMCG हो गया, हेल्थ केयर हो गया, आपकी जो प्लेसमेंट्स है ना, वो क्लोजली समर हो या फिर आपका फाइनल हो, वो तो क्लोज बाई चल रहा है. अब फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं, विच इज़ बेटर. देखो, आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट. IIT Bombay
is anytime better than IIM Shillong, new IIMs, BB IIMs, NITI, for that matter, IIT Delhi, IIT Kharagpur. There is no doubt about it that IIT Bombay is definitely superior to these B schools. ठीक है. Now अगर मैं बात करूँ IIM कोईकोड के बारे में, it depends आपको कहाँ चलना है, बट फिर भी एज अ ब्रांड मैं IIM कोईकोड को थोड़ा आगे रखूँगा. IIM इंदौर की हालत थोड़े से इतने सही नहीं है मेरे ख्याल से. सो कुछ बच्चे जो लास्ट ईयर IIM इंदौर छोड़ के IIT बॉम्बे चले गए एंड दे आर सुपर डुपर हैप्पी. ओके, सो अगर मैं बात करूँ IIT बॉम्बे डेफिनेटली टॉप 10 में वेंचर करता है. अब यहाँ पे क्लोज कॉल होता है तुम्हारा MDI गुड़गांव या फिर तुम्हारा IIT बॉम्बे. Today, as I am talking, which is 9th May 2022, I would definitely go ahead with MDI Gurgaon because it has a legacy in the management. You know, it's been there in the market since so many years now. So that charm, that aura is not going to fade away very quickly, right? So definitely, as on today, I would recommend MDI Gurgaon. Maybe 5 साल के बाद अगर मैं ये वीडियो बनाऊँ IIT बॉम्बे के लिए, अगर IIT बॉम्बे बहुत अच्छा करता है तो शायद से मैं IIT बॉम्बे को recommend करूँ MDI गुड़गांव के over and above. बट फिलहाल मुझे लगता है that IIT बॉम्बे is definitely good. अगर मैं बात करूँ जमनालाल बजाज के बारे में, which is JBIMS, trust me, I would still go ahead with IIT Bombay because over a period of time अगर हम बात करेंगे तुम्हारे एवरेज पैकेजेस वगैरह के बारे में, देखो नो डाउट अबाउट JBIMS बीइंग वेरी गुड इन फाइनेंस. ओके, बट अगर मैं बात करूँ ई कॉमर्स, अगर मैं बात करूँ ऑपरेशंस, अगर मैं बात करूँ तुम्हारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट, वहाँ पे मेरे ख्याल से IIT बॉम्बे थोड़ा ज़्यादा आगे निकल जाएगा. एंड आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू स्टूडेंट्स एट JBIMS, बट दे विल टेल यू द रियलिटी दैट फाइनेंस के लिए इट्स मेक्का. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. इट्स वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल, बट लॉट ऑफ PSUs आर कमिंग ऑन द कैंपस. ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा. बाय द वे EXL मुझे यहाँ पे भी दिखा जिसके बारे में आपको रेफरेंस दे रहा था. तो JB इज़ डेफिनेटली गुड, नो डाउट अबाउट इट. बट अगर आप थोड़ा ROI देखते हो तो JB थोड़ा ऊपर आता है. बट अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में देखूँ तो यहाँ पे भी कम है. बट IIT बॉम्बे इज एक्चुअली डूइंग अ फैबुलस जॉब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फाइनेंस करना है JB चले जा सकते हो. एंड अगर आप डाई हार्ड फैन हो कि मुझे प्रॉडमैन करना है, IT कंसल्ट करना है, तो यार आप IIT बॉम्बे को देख सकते हो. इट इज़ नॉट दैट अ बैड ब्रांड. नॉट बैड बोलना सही नहीं है, बट या इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट ग्रोविंग नाउ. सो ये मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन रहा. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया. आई होप आपको ये कंपैरिजन समझ में आया. एंड आई नो देयर आर डाई हार्ड SPJN पीपल, देयर आर डाई हार्ड JBIMS people, there are die hard IIT Bombay people. Guys, my review is always going to be neutral. मैं ज़्यादा hype नहीं करता, मैं ज़्यादा I don't do that hype unnecessarily, वो नौटंकी मुझे आती नहीं है. I'm being very straightforward. I'm telling you these reviews. And even if you check my reviews for last year, I have told a lot of good stuff about IIT Bombay, and it has now been proved that the college is doing phenomenally good. So guys, that's it from my side. If you have any other B school which you want me to kind of make a video on, I'll be more than happy to do that. Put the comment. I'll be picking up those things. Slowly steadily we'll be making cap round के कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, न्यू IIMs BBMs के बारे में भी बात करेंगे. आई वॉज ऑन अ ब्रेक फॉर 2-3 days because I went on a pilgrimage, so I could not make the video, but now videos will be on every single day. You guys will be having the videos, right? So guys, that's it from my side. I hope you understand, and I hope you like this entire review. If you have any confusion, any doubt, please feel free to put a comment here. You can correct me, you can sort of discuss with me, and you can have a debate also. I'll try my level best to kind of reply you. So guys, that's it from my side. Take care of yourself, and thank you so very much for watching this video. Like and share this with your friends. Bye bye.